Dear students, welcome to the channel MR Maths Academy. Derivative of composite function सेकेंड पार्ट में हम रिमेनिंग सम्स को देखते हैं. Differentiate the following with respect to x. Given function is e raised to 2x square. Solution, let y is equal to e raised to 2x square. Derivative लेना है हमको. So left hand side is standard function. So derivative dy by dx. एंड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड लेना है तो राइट हैंड साइड का टाइप ई रेस टू 2x स्क्वायर. फर्स्ट फंक्शन ई, सेकेंड रिमेनिंग पार्ट इज 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर अदर देन x है, देयरफॉर दिस इज कंपोजिट फंक्शन एंड वी रीड इट एज ई रेस टू फंक्शन. सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू फंक्शन. Now derivative of e raised to function is e raised to function into derivative of function e raised to 2x square as it is. डेरिवेटिव लेना है, टाइप है 2x स्क्वायर, स्केलर मल्टीपल 2 एज इट इज. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो 2x इंटू 2 इज 4x. therefore 4x into e raised to 2x square is derivative of given composite function. let y is equal to given function. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेना है, टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड स्टैंडर्ड फॉर्म है dy by dx. राइट हैंड साइड a रेस टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. फर्स्ट फंक्शन a रेस टू, तो फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल a एंड रिमेनिंग पार्ट इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अदर देन x है, कंपोजिट फंक्शन. सो वी रीड एट a रेस टू फंक्शन. तो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड dy by dx, derivative of right hand side a raised to x square plus 4x minus 5 and derivative of a raised to function. So derivative of a raised to function is a raised to function into log of base a into derivative of function. So this bracket as it is derivative of sum of the three functions है, sum and difference. So first function x square derivative is 2x, derivative of 4x is 4 into 1 minus 5 constant, derivative is 0. So we get 2x plus 4. So this is the final answer. Let y is equal to given function. Left hand side y है standard form, right hand side 5 raised to x square plus 2. First function 5 raised to, that means exponential है 5, exponential function first function and remaining is x square plus 2 other than x, therefore composite form है when we read it as 5 raised to function. So derivative of left hand side dy by dx, derivative of right hand side 5 raised to function. So derivative of 5 raised to function is derivative is 5 raised to function into log of 5 into derivative of function x square plus 2. First bracket as it is, डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 सम ऑफ द फंक्शन. फर्स्ट एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव इज 2x, सेकेंड कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0. सो सिंपली वी गेट डेरिवेटिव इज 2x. तो फाइनल आंसर इज 2x इंटू 5 रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 5. लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन. फंक्शन है e रेस टू लॉग ऑफ लॉग x. ई एक्सपोनेंशियल है और इसका पावर में लॉग है, दोनों भी रिवर्स फंक्शन है. एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर रिवर्स functions to each other. So by using this formula e raised to log of x, e and log ये x रिवर्स है, कैंसिल हो जाएंगे. सिंपली x is a simplification. So here e and log cancel हो जाएगा, remaining part is log x. So by using this formula simplified form is y is equal to simply log x. E and log get cancelled. The simplified form is y is equal to log x. Left hand side y standard form, right hand side log x standard form. So derivative of y dy by dx, derivative of log of x is 1 by x. So 1 by x is a derivative of given function.
Let y is equal to given function e raised to x square. Left hand side is y standard form, right hand side e raised to x square. First function is exponential e and remaining part is e raised to x square, which is other than x, composite form है. So first function e है, remaining is function, so e raised to function. Derivative of left hand side dy by dx, derivative of right hand side e raised to function. So derivative of e raised to function is e raised to function into derivative of function. First bracket as it is, derivative लेना है, type of function e raised to x square other than x है, therefore it is also composite form है e raised to function. So derivative of e raised to function is e raised to function into derivative of function. First two brackets as it is. So derivative of x square is a function. So derivative of x square is 2x. So इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं. So that is the derivative of given composite function. Let y is equal to given function 7 raised to 3 raised to x square. सिमिलर टाइप है, सिर्फ यहाँ पर जनरल बेस है, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. सो लेफ्ट हैंड साइड y स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट हैंड साइड 7 raised to 3 raised to x square. 7 first function exponential, 3 raised to x square other function, other part है, remaining part other than x, composite form. So we read it as 7 raised to function. Derivative of left hand side dy by dx, derivative of right hand side 7 raised to function. So derivative of 7 raised to function is 7 raised to function into log of base 7 into derivative of function. First bracket as it is, derivative टाइप का ऑब्जर्व करते हैं, 3 raised to x square फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल, रिमेनिंग x square other than x, composite form. So function is x square. So we read it as 3 raised to x square. So we read it as 3 raised to function. So derivative of 3 raised to function is 3 raised to function into log of base 3 into derivative of function. फर्स्ट टू ब्रैकेट एज इट इज हो जाएंगे. हियर फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है. फर्स्ट टू ब्रैकेट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. उसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. सो वी गेट द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन. नेक्स्ट, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन e रेज टू 5 x e रेज टू x रेज टू 5 इंटू लॉग इंटू e रेज टू x इंटू लेफ्ट डेरिवेटिव लेना है. लेफ्ट हैंड साइड टाइप स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट हैंड साइड e रेज टू x रेज टू 5 इंटू e रेज टू x, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है. सो डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड का टाइप प्रोडक्ट फॉर्म है. फर्स्ट फंक्शन इज e रेज टू x रेज टू 5, सेकेंड फंक्शन इज e रेज टू x. प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है. So first function as it is, derivative of second plus second function derivative of first. So derivative of first लेना है. first का derivative क्या होगा, टाइप कैसा है, e raised to function है. So first का derivative e raised to function into derivative of function. So e raised to function का derivative मिला e raised to function and function is x raised to 5, its derivative is 5x raised to 4. So in two terms है, common part is e raised to x into e raised to x raised to 5, ये common part रहेगा. So taking e raised to x raised to 5 into e raised to x common, remaining part यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 5x raised to 4. now second मेथड देखते हैं. सेकेंड में हम इसको सिंप्लीफाई करना है. गिवन टाइप था y is equal to e raised to x raised to 5 into e raised to x. टू प्रोडक्ट फॉर्म है, टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म का प्रोडक्ट है, हैविंग सेम बेसिस. सो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं. हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हुए ऐड किया इन पावर्स को. नाउ टाइप इज e रेज टू x रेज टू 5 प्लस x. सो डेरिवेटिव लेना है. लेफ्ट हैंड साइड इज y स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट हैंड साइड e रेज टू x रेज टू 5 प्लस x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल एंड फंक्शन इज x raised to 5 plus x. So we read it as e raised to function.
तो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, ई रेस टू फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ e raised to function is e raised to function into derivative of function. Derivative of function is x raised to 5 plus x function है, x raised to 5 का डेरिवेटिव 5x raised to 4 and derivative of x is 1. Let y is equal to given function. टाइप कैसा है? y स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड e raised to x plus 2 log x. x plus 2 log x is other than x, composite form, so we read as e raised to function. So derivative of y dy by dx, derivative of right hand side e raised to function. Derivative of e raised to function is e raised to function into derivative of function. Derivative of function हमें लिया है डायरेक्टली. So फर्स्ट ये फंक्शन का फर्स्ट टर्म है x, x का डेरिवेटिव 1 एंड प्लस 2 log x का डेरिवेटिव लेना है. 2 एज इट इज स्केलर मल्टीपल, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x. नाउ सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे. सो x इंटू 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू रिमेनिंग फंक्शन. और इसी फंक्शन को फर्दर सिंप्लीफाई करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं. सो अल्टरनेट मेथड देखते हैं. लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन. टाइप कैसा है? e रेस टू x प्लस 2 log x. पावर जो है सम ऑफ द टर्म्स है, लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हैं. e रेस टू फर्स्ट पावर यानी फर्स्ट टर्म प्लस इंटू e रेस टू सेकेंड टर्म. नाउ सेकेंड टर्म कैसा है? e रेस टू 2 इंटू लॉग एक्स. e लॉग इन्वॉल्व है, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 2 को लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हुए 2 पावर में जाएगा. सो ये हो जाएगा e रेस टू, ये 2 जो है पावर में कन्वर्ट हो गया, एक लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ e और लॉग रिवर्स प्रोसेस है, कैंसिल हो जाएंगे. सिंप्लीफाइड फॉर्म इज सिंपली एक्स स्क्वायर यानी e रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. नाउ टेकिंग द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड e रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं. फर्स्ट फंक्शन e रेस टू एक्स, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड है एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव इज 2x प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e रेस टू फंक्शन है, सो एज इट इज रहेगा e रेस टू फंक्शन. नाउ टेकिंग e raised to x common, remaining part is 2x plus x square, or we can take x also common. Let y is equal to given function. Left hand side y standard form है, right hand side e raised to power, power कैसा है? other than x है, therefore composite form है. So we read it as e raised to function. So derivative of left hand side dy by dx, derivative of right hand side e raised to function. Derivative of e raised to function is e raised to function into derivative of function. So function ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगी. डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव का सिंबल है, डेरिवेटिव लेना है. टाइप को ऑब्जर्व करते हैं. सम ऑफ द टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म है x इंटू साइन 2x, x इंटू प्रोडक्ट फॉर्म है, फर्स्ट टर्म प्रोडक्ट फॉर्म और सेकेंड कंपोजिट फॉर्म. सो पहले हम फर्स्ट जो फंक्शन है, फर्स्ट जो टर्म है प्रोडक्ट फॉर्म में, सब प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं. फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड फंक्शन साइन 2x. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एंड यहाँ पे सेकेंड फंक्शन था cos 2x, सो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन cos 2x. नाउ डी बाई डी एक्स, इन तीनों फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना है. फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, एक्स एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव लेना है. टाइप ऑफ फंक्शन साइन 2x, साइन 2x, साइन फर्स्ट फंक्शन 2x अदर देन x है, कंपोजिट फॉर्म. सो वी रीड इट एज साइन ऑफ फंक्शन, हियर फंक्शन इज 2x, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ फंक्शन. सो x एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा. डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ फंक्शन इज कॉस ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. डायरेक्टली हमने डेरिवेटिव लिया है, 2x का डेरिवेटिव 2. सो साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 2x एंड 2x का डेरिवेटिव x, सॉरी सिंपली 2 प्लस साइन 2x एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ x इज 1
Now derivative of cos of 2x, cos 2x other than x है, composite form है, so we read it as cos of function, function is 2x, so derivative of cos of function is minus sine of function into derivative of function, so cos of 2x का derivative minus sine of 2x and derivative of function 2x is 2. Now simplification, first bracket as it is, so here we get 2x into cos 2x, this is sin 2x और ये रहेगा minus 2 sin 2x. So फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, इस ब्रैकेट में से कॉमन पार्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लास्ट टू को देखो sin 2x यानी 1 sin 2x एंड दिस इज minus 2 sin 2x, दोनों की एडिशन minus 1 sin 2x minus 1 sin 2x और सिंपली minus sin 2x. So this is the derivative of given function. Let y is equal to given function, ये भी similar to last function, last type है. लेफ्ट हैंड साइड y स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल कंपोजिट फंक्शन है, वी रिड एज e रेज टू फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड e रेज टू फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू फंक्शन इज e रेज टू फंक्शन, ये फर्स्ट e रेज टू फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, so derivative of e raised to function is e raised to function into derivative of function, ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, डेरिवेटिव लेना है, सम ऑफ द टू टर्म्स है, सो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर साइन रेस टू यानी साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है, प्रोडक्ट फॉर्म है, सो प्रोडक्ट रूल यूज करना है हमको यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट and derivative of this second function, first bracket as it is, derivative लेना है, टाइप कैसा है, sin square x, sin square x similar to sin x whole square यानी पावर फंक्शन, कंपोजिट फॉर्म है sin x square, तो उसको हम रीड करते हैं फंक्शन रेज टू 2, सो फंक्शन रेज टू 2 का जो डेरिवेटिव होगा यानी पहले पावर 2 का डेरिवेटिव लेंगे फिर फंक्शन sin x का डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का 2 साइन रेज टू 2 माइनस 1 इंटू एक्स यानी सिंपली 2 साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साइन एक्स इज कॉस एक्स, सो पावर फंक्शन 2 था उसका डेरिवेटिव 2 इंटू साइन 2 माइनस 1 एक्स और सिंपली 2 साइन एक्स और फंक्शन है साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो sin square x as it is, derivative of x square 2x, here derivative of function, function ये सेम sin square है, यहाँ पर cos square है, पावर फंक्शन है, composite form, पावर फंक्शन is 2 and function is cos x, तो ये फंक्शन स्क्वायर है, सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन स्क्वायर इज 2 फंक्शन 2 माइनस 1 यानी सिंपली 2 cos x and derivative of cos x is minus sin x, कंपोजिट टाइप था, फर्स्ट फंक्शन पावर है, सो 2 cos रेज टू 2 माइनस 1 यानी सिंपली 2 cos x, सो ये पावर का डेरिवेटिव 2 cos x एंड फंक्शन इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. नाउ सिंप्लीफिकेशन, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, हियर x square as it is and this is 2 sin x into cos x using trigonometric formula. 2 sin x into cos x is sin 2x, so इसके लिए simplified form हो गया sin 2x, remaining plus sin square of x into 2x यानी simply we get 2x into sin square of x and last से मिलेगा 2 cos minus sin x यानी minus 2 sin x cos x, so minus sin 2x मिलेगा, so again using the formula, so we get minus sin 2x. फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, इसमें से सिंप्लीफाई करते हैं, ये sin 2x है माइनस का और ये sin 2x है, सो यहाँ से फर्स्ट और लास्ट से कॉमन लेते हैं, टेकिंग sin 2x कॉमन, सो टेकिंग sin 2x कॉमन, यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस 1 एंड रिमेनिंग फैक्टर ये रिमेनिंग टर्म एज इट इज, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन. लेट y is equal to given function, left hand side y standard form, right hand side e raised to cot x into tan of x
इंटू ई रेस्ट टू एक्स प्रोडक्ट फॉर्म है. फर्स्ट जो फैक्टर है वो भी कॉम्पोजिट फॉर्म है, सेकेंड वन भी कॉम्पोजिट फॉर्म है, लेकिन प्रोडक्ट है. सो हम पहले प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ करें. डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड इज product of two function. First function is e raised to cot x and second function is tan of x into e raised to x. So derivative लेते हैं by using product rule. First function as it is derivative of second plus second function derivative of first. ये derivatives लेना है. e raised to cot x as it is derivative of tan of x into e raised to x. टाइप का ऑब्जर्व करना है tan और ये ब्रैकेट अदर देन x है, दैट मीन्स कॉम्पोजिट फंक्शन. इसको रीड करेंगे tan ऑफ फंक्शन. सो डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ फंक्शन इज ये फंक्शन है. सो डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ फंक्शन ये e रेज टू cot x एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ फंक्शन इज sec स्क्वायर ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस tan ऑफ x e रेज टू x एज इट इज. हियर डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू cot x, e raised to cot x is other than x, composite function we read it as e raised to cot x. So cot x is function, e raised to function. Derivative of e raised to function is e raised to function into derivative of function. First two factors as it is. Derivative लेना है, derivative of x into e raised to x product form. फर्स्ट फंक्शन है x, सेकेंड x is e raised to x. अब डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लेंगे हम बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e raised to x एज इट इज. सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. सो ये आ गया फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ये दोनों फैक्टर्स एज इट इज रहेंगे. यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है. डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म. कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स. नो इसको सिंप्लीफाई करना है. ये दो टर्म्स है, इसमें इन दोनों टर्म्स में कॉमन पार्ट देखते हैं. कॉमन पार्ट इज ई रेज टू कॉट एक्स. ई रेज टू कॉट एक्स कॉमन पार्ट है. सो टेकिंग ई रेज टू कॉट एक्स कॉमन, रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा? ये दो ब्रैकेट्स आएंगे और यहाँ से ये और ये दो ब्रैकेट्स, ये दो फैक्टर्स रहेंगे. तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते वक्त थोड़ा सा और केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए. इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इस ब्रैकेट से कॉमन लेंगे ई रेज टू एक्स. ई रेज टू एक्स कॉमन लेंगे, सो रिमेनिंग पार्ट एक्स प्लस 1. इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं. ई रेज टू एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1 यहाँ आ गया. ये रिमेनिंग एज इट इज फैक्टर प्लस ये दोनों फैक्टर्स एज इट इज. सो ये माइनस कोसेक स्क्वायर और ये tan ऑफ फंक्शन. सो यहाँ पर हमने दो स्टेप सिंप्लीफिकेशन के एक ही साथ यूज़ किए. ई रेज टू कॉट एक्स कॉमन लिया हमने. रिमेनिंग पार्ट ये दो ब्रैकेट्स यहाँ रहेंगे, यहाँ से दो फैक्टर्स यहाँ रहेंगे. फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई भी करना था, तो हमने साइमल्टेनियसली इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया हमने. ई रेज टू एक्स कॉमन ले लिया हमने. सो यहाँ से x प्लस 1 ये वेक्टर एज इट इज, यहाँ से ये दो फैक्टर एज इट इज. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन. नेक्स्ट वन है लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन. टाइप कैसा है? क्वेश्चन फॉर्म है, डिवीजन वाला फॉर्म है. न्यूमरेटर पर टू टर्म्स है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल के सेकेंड जो टर्म है इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर नेगेटिव है, तो उसको सिंप्लीफाई करना है. तो उसके लिए मेथड क्या है? दो मेथड्स हैं. एक उसको रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेके सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर एक शॉर्टकट मेथड कि ई रेज टू 2x माइनस 2x है. सो उसके अपोजिट ई रेज टू 2x से मल्टीप्लाई करते हैं. सो ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो जाएगा एक ही स्टेप में. सो मल्टीप्लाइंग बाय ई रेज टू एक्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ईच टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे बाय ई रेज टू 2x. इस ई रेज टू माइनस 2x को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ई रेज टू 2x से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर के ईच टर्म और डिनोमिनेटर के ईच टर्म को. सो ई रेज टू 2x इंटू ई रेज टू 2x, ये ई रेज टू 4x हो जाएगा. ये ई रेज टू माइनस 2x इंटू ई रेज टू 2x, ये दोनों अपोजिट है, कैंसिल कर यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म 1 मिलेगा. सो सिंपली वी गेट ई रेज टू 4x माइनस 1 ई रेज टू 4x प्लस 1. So y is equal to e raised to 4x minus 1 divided by e raised to 4x plus 1.
टाइप कैसा है, क्वोशंट फॉर्म, क्वोशंट रूल यूज करें। क्वोशंट रूल में क्या करते हैं हम, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। सो डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड आ गया। अब इस पर हम क्वोशंट टूल यूज कर रहे हैं, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। सो फार्मूला अप्लाई किया हमने, कैसे अप्लाई करते हैं, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखते हैं पहले, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमने क्वोशंट रूल यूज किया। अप्लाई कैसे करना है, ये डिनोमिनेटर, सो पहले डिनोमिनेटर स्क्वायर लिखेंगे न्यूमरेटर के ऊपर, फर्स्ट जो फैक्टर रहेगा वो डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब हमको इनके डेरिवेटिव्स लेना है। सो ये डेरिवेटिव लेंगे, सो इसका टाइप कैसा है, सम डिफरेंस ऑफ टर्म ई रेस टू 4x अदर देन x, यानी कंपोजिट फॉर्म है 4x फंक्शन, सो ई रेस टू फंक्शन है और -1 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा। सो डेरिवेटिव लेते हैं हम, ये फैक्टर एज इट इज, ये ई रेस टू फंक्शन है, ई रेस टू फंक्शन का डेरिवेटिव ई रेस टू फंक्शन यानी ई रेस टू 4x एज इट इज, एंड फंक्शन 4x का डेरिवेटिव 4 इंटू 1 यानी 4, सो ये 4 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ई रेस टू फंक्शन का डेरिवेटिव ई रेस टू फंक्शन 4x का डेरिवेटिव 4। नाउ सिंप्लीफिकेशन, अब न्यूमरेटर से कॉमन पार्ट क्या रहेगा, 4 ई रेस टू 4x, सो 4 ई रेस टू एक्स, 4 को कॉमन, रिमेनिंग ये दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पर अरेंज हो गए। ना उनका सिंप्लीफिकेशन, ये अपोजिट टर्म से कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1 इज 2, सो 2 इंटू 4 इज 8, 8 ई रेस टू 4x डिवाइड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। नो थर्ड जो टर्म्स है, थर्ड जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, कंपोजिट फॉर्म ही है लेकिन लॉगरिथमिक फॉर्म में है। सो पहले फंक्शन को सपोज कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, डेरिवेटिव लेना है, लेफ्ट हैंड साइड y स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट हैंड साइड log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, फर्स्ट फंक्शन log, रिमेनिंग अदर देन x है, देयरफॉर कंपोजिट फॉर्म, इसको रीड करते हैं log ऑफ फंक्शन। So derivative of y is dy by dx, derivative of right hand side log of function. So derivative of log of function is 1 by function into derivative of function. Log of function का derivative 1 by function into derivative of function. ये bracket as it is, derivative लेते हैं, derivative में sum of the terms है, first term x square, derivative is 2x, 7 constant है, derivative 0, so 2x plus 0 simply 2x. So 2x numerator पे आएगा, remaining as it is. Let y is equal to given function, derivative of left hand side, derivative of right hand side again composite form है, log, remaining other than x, so इसको हम function treat करेंगे, so log of function, derivative of log of function is 1 by function into derivative of function, ये fraction as it is, derivative of sin of 2x plus 3, sin फर्स्ट फंक्शन 2x plus 3 अदर देन x कंपोजिट फॉर्म, तो इसको इस ब्रैकेट को फंक्शन ट्रीट करेंगे, सो दिस इज साइन ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ फंक्शन इज कॉस ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन का डेरिवेटिव हमने ये साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है, कॉस ऑफ फंक्शन, अब फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखते हैं, फंक्शन इज 2x plus 3, 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 1, 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, सो सिंपली वी गेट 2, तो फंक्शन का डेरिवेटिव मिला हमको 2। अब बस इसको अरेंज करना है, अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2 कॉस डिवाइड बाय साइन, एंड कॉस डिवाइड बाय साइन सेम एंगल्स है, कॉस डिवाइड बाय साइन इज कॉट, सो 2 कॉट ऑफ 2x plus 3। लेट y is equal to given function, left hand side y standard form, right hand side log first function, ब्रैकेट है अदर देन x composite form, we read it as log of function, so derivative of left hand side dy by dx, derivative of right hand side log of function, so derivative of log of function is 1 upon function into derivative of function, फर्स्ट ब्रैकेट ये as it is फ्रैक्शन रहेगी, डेरिवेटिव लेना है, टाइप का ऑब्जर्व करते हैं, सम ऑफ द फंक्शन फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द टर्म्स है फर्स्ट टर्म इज x into tan x, तो प्रोडक्ट फॉर्म है, सो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे,
फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड फंक्शन इज tan x. So फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. हमने डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल को. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x इज sec स्क्वायर ऑफ x. सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 1 प्लस sec x स्टैंडर्ड फॉर्म है. सो डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x इंटू tan x. नो सिंप्लीफिकेशन. तो सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, यहाँ से हमने क्या किया, ये x sec स्क्वायर एज इट इज, लास्ट टू से tan x कॉमन ले लेते हैं. सो टेकिंग tan x कॉमन वी गेट sec x प्लस 1. सो दिस इज द फाइनल आंसर. लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन. टाइप डेरिवेटिव लेना है. टाइप देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट हैंड साइड log ऑफ log x होल स्क्वायर. स्क्वायर है, पावर है. सो फर्स्ट फंक्शन हम पावर को ट्रीट करेंगे और ये बॉक्स ब्रैकेट को फंक्शन रीड करेंगे. सो फंक्शन स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड फंक्शन स्क्वायर. सो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं 2 इंटू फंक्शन रेज टू 1. ये पावर का डेरिवेटिव मिलेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. सो पावर का डेरिवेटिव हमने लिया है 2 इंटू फंक्शन रेज टू 2 माइनस 1 1 है. 1 पावर में हम डिफाइन नहीं करते हैं. तो सिंपली वी गेट 2 इंटू फंक्शन. नाउ डेरिवेटिव ये हो गया पावर का डेरिवेटिव 2 इंटू फंक्शन रेज टू 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. ये ब्रैकेट एज इट इज. यहाँ पर टाइप डेरिवेटिव लेना है. टाइप को ऑब्जर्व करते हैं. लॉग ऑफ log x. फर्स्ट फंक्शन लॉग और ये जो ब्रैकेट है वो अदर देन x है. देयरफॉर कंपोजिट फंक्शन वी रीड इट एज log ऑफ फंक्शन. सो ये फंक्शन है हमारा log ऑफ फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ फंक्शन इज 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. तो ये फर्स्ट टू फैक्टर्स एज इट इज लिखेंगे. डेरिवेटिव लेना है. टाइप को ऑब्जर्व करते हैं. log ऑफ log x. फर्स्ट फंक्शन log एंड रिमेनिंग पार्ट अदर देन x है. कंपोजिट फॉर्म. सो अगेन ये कंपोजिट फॉर्म है. इसको रीड करेंगे log ऑफ फंक्शन. सो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ फंक्शन इज 1 बाय फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. अब डेरिवेटिव भी डायरेक्टली लिखते हैं. ये फंक्शन है log x, इसका डेरिवेटिव 1 बाय x. ये 1 बाय x हो गया. यहाँ पर हमने डायरेक्टली इस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव 1 बाय x यानी log ऑफ फंक्शन था. सो ये 1 बाय फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 1 बाय x. तो सिंपली इसको अरेंज करना है. ये तीनों फैक्टर्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, न्यूमरेटर एज इट इज. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन. नेक्स्ट वन इज लेट y is equal to given function. Left hand side y standard form, right hand side log other than x composite form. So we read it as log of function. log of function है. अब डेरिवेटिव्स कर लेते हैं. डायरेक्टली अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म मिल रहा है तो देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं. तो सिंप्लीफाई अगर करना है तो हम इजीली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो सिंप्लीफिकेशन का मेथड देख लेते हैं. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, टिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस यूज़ किए. टिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस वाला फार्मूला यूज़ किया हमने. 1 माइनस कॉस के लिए टिग्नोमेट्रिक फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल. ये 1 माइनस कॉस के लिए 2 साइन स्क्वायर और 3x बाई 2 इसका हाफ, 3x बाई 2 का हाफ मिलेगा 3x बाई 4. 3x बाई 4 मिला है. 1 प्लस कॉस के लिए 2 कॉस स्क्वायर और एंगल का हाफ 3x बाई 4 आ गया. नाउ साइन स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा. साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर. सो लॉग ऑफ रूट ऑफ tan स्क्वायर ऑफ 3x बाई 2. ये रूट है और ये tan स्क्वायर है. tan स्क्वायर 3x बाई 4 है. सो वी कैन राइट इट एज tan ऑफ 3x बाई 4 होल स्क्वायर. सो यहाँ से ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा. तो सिंपली वी गेट log ऑफ tan ऑफ 3x बाय 4. तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म. नाउ इसका डेरिवेटिव लेना है तो टाइप स्टैंडर्ड फॉर्म dy by dx. राइट हैंड साइड log ऑफ अदर देन x कंपोजिट फॉर्म है. log ऑफ फंक्शन है. सो log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन. ये मिल गया log ऑफ फंक्शन. तब इसका डेरिवेटिव लेते हैं. डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ फंक्शन इज 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. ये डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ फंक्शन इज 1 बाय फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगी या फिर इसका रेसिप्रोकल लेना है तो ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा.
और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेते हैं, अगेन इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये फंक्शन हमने एज इट इज़ रखा है, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टाइप का ऑब्जर्व करते हैं। डेरिवेटिव फंक्शन है tan ऑफ 3x/4, 3x/4 अदर देन x है। फर्स्ट फंक्शन tan, रिमेनिंग अदर देन x, कंपोजिट फॉर्म है। सो दिस इज द फंक्शन, सो वी रीड इट एज tan ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ फंक्शन इज sec स्क्वायर ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये tan ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ फंक्शन, और फंक्शन है 3x/4, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3/4 स्केलर मल्टीपल, और x इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो सिंपली वी गेट 3/4। ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई फॉर्म करने के लिए हमने क्या किया है, ये जो tan था, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है, और cot के लिए फॉर्मूला होता है cos बाय साइन। सो ये cos बाय साइन आ गया। sec का रेसिप्रोकल cos, सो हमको मिलेगा ये 1/cos स्क्वायर ऑफ गिवन एंगल, और ये 3/4 एज इट इज। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये cos और ये पावर कैंसिल हो जाएगा। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको ये मिला है 1/sin ऑफ फंक्शन 1/cos ऑफ फंक्शन इंटू 3/4। अब डिनोमिनेटर में साइन इंटू कॉस है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है 2 sin इंटू कॉस ऑफ एंगल, 2 sin एंगल इंटू कॉस एंगल इज इक्वल टू साइन ट्वाइस ऑफ एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, उस फार्मूले को यूज करते हैं। तो उसके लिए 2, सो यहाँ से 2 इसके लो स्प्लिट कर देते हैं, ये 2 यहाँ से प्रोवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 3/2। सो ये मिल गया हमको 1/। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ये अप्लीकेबल हो जाएगा। कौन सा फार्मूला, 2 sin एंगल इंटू कॉस एंगल इज इक्वल टू साइन ट्वाइस एंगल, ये साइन रहेगा इसका ट्वाइस हो जाएगा। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पर। सो ये साइन इसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 3x/4 इंटू 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 4 जो है ना 2 में कन्वर्ट हो गया। सो ये 3/2 एज इट इज, और इसका सिंप्लीफिकेशन मिला है 1/sin 3x/2। ये 1/sin है, 1/sin का रेसिप्रोकल कोसेक, सो 3/2, और ये रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल 1/sin, ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में। सो 1/sin का रेसिप्रोकल सेक कोसेक मिलता है। सो कोसेक 3x/2 इज ए डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, टाइप है y स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट हैंड साइड log, फर्स्ट फंक्शन है ब्रैकेट अदर देन x है, देयरफॉर ये कंपोजिट फॉर्म है। अब डायरेक्ट कंपोजिट फॉर्म है, इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं हम, या फिर सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड उसको रेशनलाइज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो डिफरेंट मेथड्स हैं, तो हम रेशनलाइज वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, log एज इट इज। इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, ये जो इसका ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया है। x प्लस रूट था तो हमने रूट प्लस एक्स लिखा है, और ये रूट माइनस एक्स, कन्वीनियंट के लिए हमने इसका ऑर्डर चेंज किया। अब ये रूट प्लस एक्स और ये रूट माइनस एक्स गिवन फंक्शन है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर मिलेगा रूट प्लस एक्स। सो रूट प्लस एक्स से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, नाउ सिंप्लीफिकेशन, न्यूमरेटर सेम है, सो ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर रूट माइनस एक्स, रूट प्लस एक्स, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्म है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, ये सिमिलर फैक्टर है, सब इस फैक्टर का स्क्वायर, यहाँ से फर्स्ट का स्क्वायर यानी रूट फ्री हो जाएगा, ये माइनस सेकेंड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली एक्स ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर कॉस्ट, ये डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिला है। नाउ टाइप कैसा है, लॉग ऑफ, ये ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, लॉग है, लॉग ऑफ क्वोशंट यूज कर सकते हैं, लॉग ऑफ क्वोशंट यूज किया हमने, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं हम, यहाँ भी यूज कर सकते हैं। सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर लिया हमने, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, पावर यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगी। सो 2 इंटू लॉग ऑफ ब्रैकेट 2 इंटू लॉग ऑफ ए, तो दिस इज दी सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है, ना इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पर y है, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड ये दो टर्म्स है, तो पहले हम फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, 2 स्केलर मल्टीपल है एज इट इज रहेगा, लॉग ब्रैकेट अदर देन एक्स है, मतलब कंपोजिट फॉर्म है, हम इसको रीड करेंगे लॉग ऑफ फंक्शन।
सो लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा 1 अपॉन ये 2 एज इट इज 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. अब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये हमने डेरिवेटिव लिया है लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन. फंक्शन ये ब्रैकेट था. सो ये लॉग का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया. अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जिसके इसका टाइप कैसा है. टू टर्म्स थे फर्स्ट और सेकेंड जो है एक्स है. फर्स्ट जो है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये ऑलरेडी हमने सॉल्व भी किए थे. और ये टाइप कैसा है रूट फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अदर देन एक्स है कंपोजिट फॉर्म है तो इसको रीड करेंगे रूट ऑफ फंक्शन. सो रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ऑफ फंक्शन. इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं. तो हमने क्या लिखा है 2 लॉग ऑफ फंक्शन. सो 2 लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव ये 2 एज इट इज स्केलर मल्टीपल लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन माइनस 2 लॉग है ये कंप्लीट कांस्टेंट है देयरफॉर डेरिवेटिव इज 0. नेक्स्ट स्टेप में हमको इसका डेरिवेटिव लेना है. ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म 2 इंटू ये वाला फैक्टर एज इट इज रहेगा. यहाँ सिंप्लीफाई करना है मतलब डेरिवेटिव लेना है. डेरिवेटिव क्या होगा टाइप ये हो गया रूट ऑफ फंक्शन प्लस स्टैंडर्ड फंक्शन एक्स. सो रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं 1 अपॉन 2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2x प्लस 0 यानी 2x. तो ये 2x आ गया. रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ऑफ फंक्शन और ये फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डेरिवेटिव इज 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. ये 2 से इसको एलिमिनेट कर देते हैं. ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये रूट इंटू 1 रूट. सो रूट प्लस 1 और 1 प्लस रूट डिवाइड बाय रूट मिलेगा ये हमको. ये 2 कैंसिल हो गया. ये वाला फैक्टर एज इट इज. यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं 1 अपॉन डिनोमिनेटर प्लस 1 क्रॉस प्रोडक्ट रूट इंटू 1 रूट. सो 1 प्लस रूट डिवाइड बाय रूट रहेगा. यहाँ से सिंप्लीफाइड पहले ये सिंप्लीफाइड फॉर्म को हमने एज इट इज अरेंज किया. ये x इंटू 1 एक्स डिवाइड बाय रूट और ये 1 ये एज इट इज. यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये रूट इंटू 1 रूट. सो एक्स प्लस रूट डिवाइड बाय रूट. ये क्रॉस प्रोडक्ट लिया हमने तो x प्लस रूट डिवाइड बाय ये रूट. ये डिनोमिनेटर का रूट एज इट इज. ये x प्लस रूट है और ये रूट प्लस x है. सिमिलर टर्म्स है कैंसिल हो जाएंगे. सिमिलर फैक्टर है. इसको ब्रैकेट में लिख के भी कैंसिल करेंगे या डायरेक्टली कैंसिल करें चले. ये कैंसिल हो गया. सो रिमेनिंग सिंप्लीफाइड आंसर इज 2 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. नेक्स्ट फंक्शन है 4 log of sec x to the base 2 minus log of 9 raised to log of 10x to the base 3 है. सो इसको सपोज कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम क्योंकि पावर में log है और ये एक्सपोनेंट में है. एक्सपोनेंट फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन रिवर्स होते हैं. रिवर्स कब होते हैं जब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों के बेस सेम रहेंगे वो तब वो एलिमिनेट होंगे. तो यहाँ पे log टू दी बेस 2 है तो बस इस एक्सपोनेंट फॉर्म को हमको बेस 2 में कन्वर्ट करना है. यहाँ log टू दी बेस 3 है. सो इस एक्सपोनेंट फॉर्म का बेस जो 9 है इस 9 को हम अगर 3 में कन्वर्ट करते हैं तो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा. तो उसको इस 9 को वी कैन राइट 3 स्क्वायर और 4 को वी कैन राइट 2 स्क्वायर. इस 4 के लिए हमने अल्टरनेट लिखा है ये 2 स्क्वायर. 9 को हमने लिखा है 3 स्क्वायर. इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म. नाउ 2 रेज टू 2 है ये इनटू लॉग मतलब 2 पावर्स है. लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो ये दोनों पावर्स का प्रोडक्ट. ये 2 इंटू लॉग ये दोनों पावर्स का प्रोडक्ट मिलेगा. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ये मिलेगा 2 रेज टू 2 इंटू लॉग टू द बेस 2 इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स टू द बेस 2 और यहाँ से मिलेगा माइनस 3 रेज टू 2 इंटू लॉग ऑफ 10x टू द बेस 3. अब यहाँ से इस 2 को एलिमिनेट करना है मतलब 2 को ट्रांसफर करना है. तो हम क्या करेंगे इस लॉ ऑफ ये लॉग है लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज कर सकते हैं. सो ये 2 जो है इस फंक्शन के पावर में जाएगा और ये 2 लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हुए इसके पावर में जाएगा. ये हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया उसको लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हुए. अब हमको मिला ये 2 रेज टू लॉग टू द बेस 2. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेस 2 है. लॉगरिथमिक फंक्शन बेस 2 है. ये कैंसिल हो जाएंगे.
3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 3 है एंड लॉगरिथमिक फंक्शन उसका बेस भी 3 है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो गए। रिमेनिंग पार्ट यहाँ से सेक स्क्वायर और यहाँ से टेन स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। एंड बाय यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, 1 plus 10 square is equal to sec square. So we can define sec square x minus 10 square of x is equal to 1. तो simplified form is 1. So given function complicated form में था, उसको हमने simplify किया, तो simplified form is 1. Now taking the derivative. Derivative of y divided by dx and derivative of 1 is 0. चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Let y is equal to given function. टाइप कैसा है, y स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट हैंड साइड log, रिमेनिंग पार्ट अदर देन x है, लॉग मतलब ये कंपोजिट फॉर्म है, log ऑफ फंक्शन हम इसको रीड कर सकते हैं। अभी log ऑफ फंक्शन से ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, लेकिन ब्रैकेट कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, कंपोजिट फॉर्म है, पहले प्रोडक्ट फॉर्म है, फिर इसके बाद फर्स्ट जो फैक्टर है वो कंपोजिट फॉर्म में है, सेकेंड वाला जो है ये क्वेश्चन ये भी कंपोजिट फॉर्म है, फिर क्वेश्चन फॉर्म है, तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बाहर जो है लॉग है, लॉग के हमारे पास 3 रूल्स है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वेश्चन, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ प्रोडक्ट भी है, क्वेश्चन भी है, एक्सपोनेंट भी टाइप है, तो लॉग के लॉस जो यहाँ पर अप्लीकेबल हो गए, इसलिए हम लॉग के लॉस यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट बेसिक टाइप कैसा है, प्रोडक्ट फॉर्म है, log of फर्स्ट प्लस log of सेकेंड, हमने log ऑफ प्रोडक्ट यूज किया। फर्स्ट a रेज टू 4x ये फर्स्ट इसका फैक्टर था और सेकेंड जो है ब्रैकेट का स्क्वायर। सो log ऑफ प्रोडक्ट यूज किया हमने, log ऑफ फर्स्ट प्लस log ऑफ सेकेंड, log ऑफ a रेज टू पावर है, log ऑफ ब्रैकेट रेज टू पावर है। सो log ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे तो ये पावर जो है साइड में आ जाएगी, प्रोडक्ट में आ जाएगी, तो 4x इंटू लॉग है और ये हो जाएगा 3/5 इंटू लॉग ऑफ ब्रैकेट, ये सिंपल फॉर्म में आ गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड जो ना क्वेश्चन में, तो लॉ ऑफ क्वेश्चन यूज कर लेंगे, फर्स्ट एज इट इज 3/5 एज इट इज, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और ये लॉग से पहले स्केलर मल्टीपल था इसलिए हमने ये लॉग का जो क्वेश्चन वाला लॉ यूज किया वो ब्रैकेट में हमने यूज किया, यहाँ पर हमको केयर करना है इसका। नो अब डेरिवेटिव लेते हैं, ये सिंपल फॉर्म में अरेंज होगा, या फिर इसको 3/5 से पहले मल्टीप्लाई कर लो और सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। फर्स्ट जो है ये एज इट इज डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव डिवाइड बाई dx, राइट हैंड साइड x इंटू 4 इंटू लॉग है, 4 लॉग है कॉन्स्टेंट है लेकिन फंक्शन के साथ में है, देयरफॉर स्केलर मल्टीपल है, सो 4 लॉग एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो 4 लॉग है स्केलर मल्टीपल था एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 आ गया, ये 3/5 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर लॉग ऑफ फंक्शन, ये लॉग ऑफ फंक्शन है, ये भी लॉग ऑफ फंक्शन है, लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन, लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन, एंड फंक्शन ये ब्रैकेट है, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 0, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 1 को नहीं भी डिफाइन करे चलेगा इसलिए हमने डायरेक्टली इसको ड्रॉप कर दिया। सो लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव 1 था। हियर अगेन लॉग ऑफ फंक्शन है, सो लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन या लॉग ऑफ फंक्शन, और फंक्शन है x प्लस 4 है, सो डेरिवेटिव मिलेगा हमको 1 प्लस 0 यानी सिंपली 1, सो 1 रहेगा। Therefore, simplified answer is 4 log a and remaining as it is. So dear students, इस तरह हमने इस सेकेंड पार्ट में कंपोजिट फंक्शन के रिमेनिंग फंक्शंस को देखा है। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को फाइंड करना है तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन में हम देखते हैं कि सेकेंड पार्ट यानी फर्स्ट फंक्शन को ऑब्जर्व करना है, रिमेनिंग फंक्शन रिमेनिंग जेड अदर देन एक्स रहेगा, कंपोजिट फॉर्म रहेगा, उसको हम रीड करते हैं फर्स्ट फंक्शन को उसके नेम से, रिमेनिंग को फंक्शन रीड करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे उसके डेरिवेटिव के लिए। फार्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, फंक्शन को
रीड करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ना हम उसका डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके बाद जहाँ भी डी बाई डी एक्स आते रहेगा वहाँ पर डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव लेने से पहले हमको टाइप को ऑब्जर्व करना है और उस टाइप से रिलेटेड फार्मूला यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। सो ये दो लेक्चर्स हमने कंपोजिट फंक्शन पर देखे हैं। इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको जो है ना आइडेंटिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। हमको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आइडेंटिफिकेशन में। हम इजीली फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ही फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया उसका रिलेटेड मेथड यूज़ करते हैं हम उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।